ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, WhatsApp, Telegram, Facebook, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ। IBPS, RRB, JEE ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, SI ਔਰ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਬੈਚਿਸ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟਰਡੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡੇ 19 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਡੇ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ 19 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੂਰਤਗੜ੍ਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਅਲੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਟੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਈਅਰ 2020 ਕੰਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ। ਦੋਨੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਤਰ ਦੇ ਸਟੇਡੀਅਮਸ ਨੇ। ਕਤਰ 2022 ਦਾ FIFA ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਸਟ ਕਰੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ। ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਪਾਰਟਨਰਡ ਵਿਦ ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ICICI ਲੋਂਬਾਰਡ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਨੇ ਟੂ ਆਫਰ ਹੋਸਪੀ ਕੈਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ। ਹੋਸਪੀ ਕੈਸ਼ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ ਦੁਆਰਾ ICICI ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੂਗਲ ਨੇ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਨੇ। 15 ਮਿਲੀਅਨ ਗੂਗਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਟੂ ਸਪੋਰਟ ਸਮੋਲ ਐਂਡ ਮਾਈਕਰੋ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਲਡ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਰਲਡ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਫ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਸਮਿਟ 26 ਯਾਨੀ ਕਿ COP26 ਸਮਿਟ ਜੋ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਰਲਡ ਸੋਲਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਇਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ। ਚਿਕੁਇਤਾ ਬਰੁਕਸ ਲਸੂਰੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ USA ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਬਿਡਨ ਦੁਆਰਾ ਫਰਸਟ ਅਫਰੀਕਨ ਵੂਮਨ ਹੈਡ ਆਫ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਮੈਡੀਕੇਅਰ ਐਂਡ ਮੈਡੀਕੈਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਊਸ਼ਾ ਰਾਓ ਮੋਨਾਰੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਔਰ ਐਸੋਸੀਏਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ UNDP ਦੇ। ਸਲੇਹਾ ਜਬੀਨ ਫਰਸਟ ਇੰਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਫੀਮੇਲ ਮੁਸਲਿਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਬੇਸਡ ਚੈਪਲਨ ਕੋਰਸ ਆਫ US ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ। ਸ਼ੀਕੋ ਹਾਸ਼ੀਮੋਟੋ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਯੋਸ਼ੀਰੋ ਮੋਰੀ ਨੂੰ। ਟਾਈਮਜ਼ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਐਨੂਅਲ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ 100 ਐਮਰਜਿੰਗ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਇੰਡੀਅਨ ਨਾਮ ਨੇ, 5 ਇੰਡੀਅਨ ਓਰੀਜਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ। ਵਿਜया ਗਾਡੇ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਟੌਪ ਲਾਇਰ, UK ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਇੰਸਟਾਕਾਰਟ ਫਾਊਂਡਰ ਅਪੂਰਵ ਮਹਿਤਾ, ਗੈਟਸ PPE ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ੀਖਾ ਗੁਪਤਾ ਔਰ ਫਾਊਂਡਰ ਆਫ ਅਪਸੋਲਵ ਰੋਹਨ ਪਾਵੂਲੂਰੀ। ਇਹ 5 ਨਾਮ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ।
नेक्स्ट है मेजर जनरल बसंत कुमार महापात्रा। मेजर जनरल बसंत कुमार महापात्रा वाज जिन्हों ने पार्टिसिपेशन की सी डिफरेंट वॉर्स दे विच, इन्हां दी रिसेंटली डेथ हो गई। के मैनन मोस्ट वर्सेटाइल एक्टर अवार्ड दिता गया इन्हों। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर थनवर चंद गहलोत इन्हों द्वारा इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी की शुरुआत की गई। 10,000 टर्म्स के नाल इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी थनवर चंद गहलोत द्वारा। पहला एडिशन 2018 के 3000 टर्म्स, दूसरा 2019 के 6000 टर्म्स के नाल। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर द्वारा 3rd क्वाड मिनिस्टर्स मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई टू डिस्कस रीजनल और ग्लोबल इशूज़। पहली मीटिंग 2019 के ऑर्गेनाइज की गई सी, दूसरी 2020 के टोक्यो के, इस साल वर्चुअली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा दुबरी फालपुरी ब्रिज और महाबाहु ब्रह्मपुत्र ब्रिज, जिसनों माजुली ब्रिज भी कहा गया, इसकी इनॉग्रेशन की गई है, फाउंडेशन स्टोन रखा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा ही परीक्षा पे चर्चा द 4th एडिशन वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया जाएगा। पहला एडिशन 2018 के तलकोतरा स्टेडियम न्यू दिल्ली के परफॉर्म किया गया सी। इंडिया होस्ट सार्क हैल्थ सैक्रटरी लैवल मीटिंग नूं इंडिया ने होस्ट किया। फ्रांस ने अप्रूवल दी है एंटी रेडिकलिज्म बिल की। एंटी रेडिकलिज्म बिल किहड़ी कंट्री ने पास किया है, तो आप डायरैक्टली याद रखांगे फ्रांस। साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर फैफ डू प्लासिस ने रिटायरमेंट ली है टेस्ट क्रिकेट तो। यूनियन कैबिनेट द्वारा इंडिया मॉरिशस की कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट के लिए अप्रूवल दी गई है। CECA शॉर्ट फॉर्म के इसनों कहा जाता है कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट। बांग्लादेश की नेवी शिप प्रोतोए की है, एक नेवी शिप है, बांग्लादेश की नेवी शिप है जो कि इंडिया के आई सी विजिट ते मुंबई की। इथोपिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर दिमेके मैकानॉन हसन इंडिया की विजिट ते सीगे, 4 दिन की विजिट ते सीगे। डिफरेंट एग्रीमेंट साइन किए गए हैं, अज की क्लास के डिस्कस करांगे। साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर क्रिस मॉरिस मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बने ने IPL हिस्टरी के राजस्थान रॉयल्स द्वारा 16.25 करोड़ के नाल खरीदे गए हैं। इसी दे नाल डेब्यू कैटेगरी के कृष्णा गप्पा गौतम 9.25 करोड़ के नाल खरीदे गए हैं। USA स्पेस एजेंसी नासा ने मार्स मिशन प्रिजर्वेंस ने लैंड किया मार्स के उत्ते जजीरो कार्टर दे विच। अकॉर्डिंग टू डाटा यूरोपीयन यूनीयन स्टैटिस्टिक एजेंसी के डाटा के अनुसार चाइना USA नूं पिछे छड्ड के बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर बन चुका है यूरोपीयन यूनीयन का। इंडिया ने ईरान रशिया की मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज के पार्टिसिपेट नहीं किया, जो कि इंडियन ओशन के कंडक्ट की जा रही है। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर नूं चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड दिता गया, किन्हां द्वारा समीर कोचार द्वारा। यूपी दे फर्स्ट ट्रांसजेंडर टॉयलेट ओपन किया गया कमाचा एरिया ऑफ वाराणसी। पंजाब द्वारा IPL टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब तो पंजाब किंग्स कर दिता गया। हिमाचल प्रदेश द्वारा स्नो फैसटिवल हुल विलेज लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट के ऑर्गेनाइज किया गया। असम के चीफ मिनिस्टर सरबानंद सोनोवाल द्वारा फाउंडेशन रखी गई है फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी की। फाउंडेशन स्टोन पहली स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया इन दारंग डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इंटरनेशनल वैदिक स्कूल अनाउंस किया गया है भगीरथी रिवर के किनारे कोटी तेहरी लेक फैसटिवल दे विच। स्टैटिक पोर्शन के वाल चलते हैं तो स्टैटिक पोर्शन के एशियन गेम्स 2022 एशियन गेम्स हैंगजाऊ चाइना
2026 एशियन गेम्स नगोया जापान, 22 एशियन गेम्स हैंगजाऊ चाइना, 2026 एशियन गेम्स नगोया जापान, 22 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड, 22 कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड दे विच और 2021 दे विच कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज किए जाने सी पोस्टपोन कर दिते गए ने 23 दे लई त्रिनाद एंड टोबैगो, त्रिनाद एंड टोबैगो कंट्री इसनूं होस्ट कर रही है। ठीक है जी, तो चलते हैं अज दे फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट क्वेश्चन दे वल। विच डे इज़ ऑबजर्वड एज वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस किस दिन ऑबजर्व किया जाता है, तो इसनूं 20 फरवरी नूं ऑबजर्व किया गया, 20 फैबररी नूं ऑबजर्व किया गया वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। थीम रही अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। इस साल की थीम कहांगे कि डिजिटल इकोनॉमी के उत्ते फोकस की गई। अ कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी इस दिन की थीम रही है। ठीक है जी, याद रखांगे इंपोर्टेंट बनेगी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी ऑप्शनस की, तो बाकी ऑप्शनस दे विच आपां कैंसर डे डिस्कस कर चुके हैं, या 10 फरवरी की गल करते हैं तो नैशनल डी वार्मिंग डे ऑबजर्व किया गया सी, 11 फरवरी 16 फरवरी सारे डेज डिस्कस कर चुके हैं। एक होर इंपोर्टेंट डे इत्थे ही डिस्कस कर लेने 20 फैबररी नूं ही अरुणाचल प्रदेश द्वारा 20 फैबररी नूं ही अरुणाचल प्रदेश द्वारा अपना 35th फॉर्मेशन डे ऑबजर्व किया गया। बेसिकली अरुणाचल प्रदेश पहले यूटी डिक्लेयर की गई सी 70s दे विच, फाइनली 1987 दे विच 1987 दे विच 20 फैबररी 1987 दे विच इसनूं फुल फ्लैज स्टेट डिक्लेयर किया गया सी। 35th फॉर्मेशन डे अरुणाचल प्रदेश ने ऑबजर्व किया। ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड हेलिना एंड ध्रुवास्त्र डेवलप्ड बाय DRDO। बेसिकली मिसाइल्स ने हेलिना और ध्रुवास्त्र। हेलिना मिसाइल की अगर आप गल करते हैं यह आर्मी वर्जन है, ध्रुवास्त्र की गल करते हैं तो ध्रुवास्त्र एयरफोर्स वर्जन है। ठीक है, एयरफोर्स वर्जन टेस्ट किया गया ध्रुव हैलीकॉप्टर तो। ठीक है, थर्ड जनरेशन की यह मिसाइल सिस्टम है, ये पूछा जा सकता है। और कित्थों टेस्टिफाइड किया गया, पोखरान रेंज, पोखरान राजस्थान तो इसनूं टेस्टिफाइड किया गया। किसने बनाई है, DRDO ने बनाई है। याद रखांगे DRDO के फैक्ट की गल करते हैं तो 1 जनवरी 1958 न्यू दिल्ली जी सतीश रेड्डी। ज़्यादातर टेस्ट ITR उड़ीसा तो किए जाते हैं, यह टेस्ट किया गया पोखरान तो। नेक्स्ट है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च। बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है जो बिल गेट्स की फाउंडेशन है, इस दे एग्रीमेंट साइन किया इंडिया दे विच CSIR देना, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। CSIR की ही गल करते हैं तो 1942 के विच बनाई गई सी, दिल्ली दे विच हैडकुआटर है SC मांडे, शेखर C मांडे इस दे हैड ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रीयल रिसर्च। इस तो इलावा NHAI नैशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दिल्ली दे विच हैडकुआटर है सुखबीर सिंह संधू इस दे हैड ने। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स एंड फेडरेशन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज इस दा हैडकुआटर दिल्ली दे विच है। इस दे हैड रिसेंटली बनाए गए ने उदय शंकर। इस तो इलावा इस दे रिलेटेड न्यूज़ भी सी कि ट्राइडेंट लिमिटेड नूं फर्स्ट प्राइज़ दिता गया, ट्राइडेंट लिमिटेड नूं फर्स्ट प्राइज़ दिता गया FICCI वाटर अवार्ड्स दे विच,
ਫੀਕੀ ਵਾਟਰ ਅਵਾਰਡਸ 2020 ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਈਡੈਂਟ ਲਿਮਿਟਡ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਵਾਟਰ ਯੂਜ਼ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੇ ਲਈ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। Which of the following will acquire Mumbai-based doubt-solving edtech platform? Scholar एक edtech platform है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म, डाउट बेस्ड सॉल्विंग है, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ, 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਜੂਸ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕਾफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, क्वेश्चन ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਬਾਇਜੂਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਬਾਇਜੂਸ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਇਜੂਸ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ UV ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਪॉइंट ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਨੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੁੰਬਈ ਬੇਸਡ ਸਕੋਲਰ ਨਾਮ ਦੇ ਐਡਟੈਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਇਜੂਸ ICC ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ICC ਨੇ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਬਾਇਜੂਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਹੂ ਚੇਅਰ ਦਾ 6th ਮੀਟਿੰਗ ਆਫ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਚੇਅਰ ਕੀਤਾ, ਹੈੱਡ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚੇਅਰ ਕਰੇਗਾ? ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਚੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕਾਉਂਸਲ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿੰਨਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ? 6ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ। ਕੌਣ ਹੈੱਡ ਕਰਨਗੇ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ, UTs ਦੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੁਆਰਾ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ CEO ਅਮਿਤਾਭ ਕਾਂਤ ਨੇ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨੇ। 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ ਔਰ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੇਦਕਰ यूनियन एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर ने। प्रकाश जावेदकर इन्होंने इनोग्रेट किया है, की किया है? अटल पर्यावरण भवन लक्षद्वीप दे विच इनोग्रेट किया गया। अटल पर्यावरण भवन नूं लक्षद्वीप दे विच इनोग्रेट किया गया है किन्ना द्वारा? जी फॉरेस्ट मिनिस्टर, इन्वायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा। ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਾਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ। ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਸੈਕਟਰੀ ਕੌਣ ਨੇ? ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ। ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ 11ਵੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਇਲੋਗ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ 11ਵੀਂ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਡਾਇਲੋਗ ਵਰਚੁਅਲ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਤਰੁਣ ਬਜਾਜ ਨੇ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ। नेक्स्ट है, हु हैज़ रिलीज्ड अ बुक राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। इस बुक नूं किन्ना द्वारा रिलीज़ किया गया? तो रिलीज़ किया गया है अमित शाह द्वारा। किन्ना द्वारा? अमित शाह होम मिनिस्टर ने। गांधीनगर गुजरात तो लोक सभा MP ने इन्हां द्वारा इस बुक नूं रिलीज़ किया गया। ठीक है, बेसिकली पूरी डिटेल थोड़ी डिस्कस कर लैंदे आ, बाकी न्यूज़ ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले इन्हां ने इस बुक नूं रिलीज़ किया 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। किस दे उत्ते है? इस CRPF दे उत्ते है, सिंस इट्स फॉर्मेशन 1939। बेसिकली कि 82 साल हो चुके ने CRPF नूं बनाए हुए। CRPF ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। 1939 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵਡ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ CRPF। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਦਾ ਨਾਮ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, AP ਮਾਹੇਸ਼ਵਰੀ ਹੈੱਡ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ बुक लिखी गई है राष्ट्र प्रथम 82 वर्षों की स्वर्णिम गाथा। बाबा रामदेव
योग गुरु बाबा रामदेव द्वारा एक साइंटिफिक रिसर्च पेपर रिलीज किया गया है, फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19, फर्स्ट एविडेंस बेस्ड मेडिसिन फॉर कोविड-19 बाय पतंजलि इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर हर्षवर्धन एंड नितिन गडकरी। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्टर, नितिन गडकरी की गल करते हैं, नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर, इन्हों की प्रेजेंस के विच इन्हों ने इसनूं रिलीज़ किया। डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इंद्रधनुष 3.0 शुरुआत की गई। बेसिकली वैक्सीन कवरेज के लिए इसकी शुरुआत की गई सी इंद्रधनुष मिशन की। ठीक है, तो डायरैक्टली याद रखांगे इंद्रधनुष मिशन किस दे नाल रिलेटेड है, तो इंद्रधनुष मिशन वैक्सीन कवरेज के नाल रिलेटेड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसने लॉन्च किया है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने इसनूं लॉन्च किया है। नेक्स्ट है राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने इन्होंने 26 हुनर हाट की शुरुआत की है। 26 हुनर हाट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली दे विच, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली दे विच इसकी शुरुआत की गई है। यह फैक्ट इंपोर्टेंट रहेगा कि इसके चीफ गेस्ट मनसुख लाल मंडाविया रहे। इस इवेंट के चीफ गेस्ट मनसुख लाल मंडाविया रहे ने, जो कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। वी मुरलीधरन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स ने, यानी कि डिप्टी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने वी मुरलीधरन, इन्हों द्वारा पासपोर्ट सेवा प्रोग्राम डिजी लॉकर की शुरुआत की गई। ठीक है, बेसिकली इसके राही पेपरलैस डॉक्यूमेंट सबमिट किए जा सकेंगे डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट है हू हैज़ इनॉग्रेटेड जन औषधि केंद्र इन बेंगलुरु कर्नाटका। इंडिया दे विच जन औषधि केंद्र ओपन किए जा रहे हैं, काफ़ी जन औषधि केंद्र जिथे मैडिसिन बेसिकली घट रेटां ते दित्ती जाती है लोगों को, कहांगे आयुष स्कीम के अंदर। ठीक है, बेंगलोर दे विच एक नवा ओपन किया गया किन्ना द्वारा, DV सर्बानंद गौड़ा द्वारा। ठीक है, न्यूज़ दे विच तां आपां डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि जन औषधि केंद्र इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शन के डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम होएगा, तो डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा नहीं, इसनूं DV सर्बानंद गौड़ा द्वारा, जो कि कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर ने, इन्होंने क्यों इनॉग्रेट किया, क्योंकि यह बेंगलुरु कर्नाटका तो की ने लोक सभा MP ने। ठीक है, DV सर्बानंद गौड़ा कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस दे विच S जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। अमित शाह आप डिस्कस कर लिया इन्होंने रिलेटेड न्यूज़। नितिन गडकरी न्यूज़ दे विच ने इन्होंने रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। स्मृति ईरानी WCD मिनिस्टर, यानी कि वूमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर प्लस टैक्सटाइल्स मिनिस्टर ने। अमेठी उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP। सुब्रमण्यम जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, इन्होंने लॉन्च की ब्रिक्स की वैबसाइट, ब्रिक्स 2021 वैबसाइट। बेसिकली ब्रिक्स की गल करते हैं, ब्रिक्स नूं बनाया गया 5 मैंबर कंट्रीज़ ने। 5 मैंबर कंट्रीज़ यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इंडिया इसका 13वां एडिशन होस्ट करेगा 2021 के विच ब्रिक्स समिट का। याद रखांगे इसके लिए वैबसाइट किसने रिलीज़ की, सुब्रमण्यम जयशंकर। नितिन गडकरी द्वारा गो इलैक्ट्रिक कैंपेन की शुरुआत की गई है। गो इलैक्ट्रिक कैंपेन किन्ना द्वारा, नितिन गडकरी द्वारा, ताकि इलैक्ट्रिक मोबिलिटी व्हीकल्स और इलैक्ट्रिक कुकिंग एप्लायंसिस नूं प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट है इजराइल डेवलप्ड अ न्यू बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड नेम्ड एरो 4 इन कोलैबोरेशन विद विच कंट्री। एरो 4 डायरैक्टली पूछा जाएगा। एरो 4 की एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है। केड़ी मिसाइल है? बैलिस्टिक मिसाइल है। स्ट्राइक रेंज कितनी है? 90 तो लैके 150 किलोमीटर इसकी स्ट्राइक रेंज है। इसनूं केड़ी कंट्री ने बनाया? था इजराइल ने USA के नाल मिलकर बनाया। अपना आंसर 5th ऑप्शन, इजराइल इसनूं USA के नाल मिलकर बनाया। ठीक है, इस तो इलावा इस न्यूज़ के विचों एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, डायरैक्टली याद रखांगे इजराइल ने बनाया, USA के नाल मिलकर बनाया।
नेक्स्ट है इंडिया साइंड एग्रीमेंट इन द फील्ड ऑफ वीज़ा फैसिलिटेशन एंड लैदर टैक्नोलॉजी। जिहड़ी आपां गल सैशन के स्टार्टिंग की सी कि इथोपिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या कहांगे फॉरन मिनिस्टर कौन आए हुए सी इंडिया की विजिट ते की नाम सी हसन समथिंग हसन नाम सी डेनेके हसन नाम सी। ठीक है डेनेके हसीन जिहड़े आए हुए सी इंडिया की विजिट ते 4 दिन की। तो 2 इंपोर्टेंट एग्रीमेंट साइन किए गए ने वीज़ा फैसिलिटेशन और लैदर टैक्नोलॉजी के फील्ड के विच। इथोपिया कैपिटल एडिस अबा दा करंसी बिड चलती। बाकी कंट्रीज़ न्यूज़ दे विच ने डिस्कस करते हैं। तो सब तो पहले बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया अमर भाषा। पहला क्वेश्चन अमर भाषा किस कंट्री का सॉफ्टवेयर है? बांग्लादेश का। अमर भाषा की काम करता है? ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर है। जजमेंट्स नूं बेसिकली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स नूं इंग्लिश दे विचों बंगाली दे विच कन्वर्ट करेगा। ठीक है इंडिया की हैल्प के नाल बनाया गया। ज़्यादा इंपोर्टेंट है इंडिया की एक स्टैप फाउंडेशन की हैल्प के नाल। ठीक है इस द्वारा इंडिया के विच भी बनाया गया सी अनुवाद बनाया गया सी। इंडिया के जिहड़ी जजमेंट्स हुंदियां ने कोर्ट्स दी जजमेंट उन्होंने की करन दे लई उन्होंने रीजनल लैंग्वेजिज दे विच कन्वर्ट करन दे लई। ठीक है यानी कि तामिल हो गया, तेलुगू हो गया, इस तो इलावा पंजाबी हो गया या डिफरेंट लैंग्वेजिज दे विच कन्वर्ट करन दे लई बोडो हो गई अनुवाद एप्लीकेशन। सिमिलर तरीके नाल बाकी दोनों न्यूज़ भी जिहड़ी कंट्रीज़ दी ने नाल इंडिया दे नाल जुड़ियां हुई ने। इंडिया की एक नेवल शिप प्रलय, इंडिया की नेवल शिप कित्थे गई है? आबू धाबी गई है। इंडिया की नेवल शिप प्रलय आबू धाबी गई है। किस दे विच पार्टिसिपेट करने के लिए? एक तो नैवडेक्स 21, एक ईडेक्स 21। नैवडेक्स की है नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है, ईडेक्स की है इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन है। ठीक है 2 इंपोर्टेंट एग्जीबिशंस नैवडेक्स और ईडेक्स दोनों के विच इंडिया की शिप प्रलय पार्टिसिपेट करेगी। प्लस इंडिया यूएई की एक्सरसाइज भी है गल्फ स्टार। इंडिया यूएई की एक्सरसाइज गल्फ स्टार जो पहली बार मार्च 2018 के कंडक्ट की गई सी, इस दे विच भी पार्टिसिपेट करेगी। यह एक्सरसाइज भी परफॉर्म की जाएगी। ठीक है नेक्स्ट है इंडिया नेपाल ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ 6 सैकेंडरी स्कूल्स। बेसिकली 6 सैकेंडरी स्कूल्स बनाए जाएंगे नेपाल दे विच। इंडिया बनाएगा, इंडिया इस दे विच एक तरीके की ग्रांट के तौर पर हैल्प करेगा। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट 2021 विच स्टेट टॉप द हाईएस्ट एम्प्लॉयबल टैलेंट रिलीज्ड जॉइंटली बाय वीबॉक्स एंड यूएनडीपी। वीबॉक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है प्लस यूएनडीपी एक ऑर्गेनाइजेशन है। वीबॉक्स प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनडीपी की गल करते हैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम न्यूयॉर्क के विच हैडक्वार्टर है। ठीक है रिसेंटली यूएनडीपी के विच ही ऊषा राव आप नाम डिस्कस किया सी याद होएगा अंडर सैक्रटरी जनरल अपॉइंट किए गए हैं। इन्होंने इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 जारी की है। इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2021 के विच टॉप किया गया है महाराष्ट्र द्वारा। ठीक है यानी कि सब तो ज़्यादा जो नौकरी देते टैलेंट वाले परसनस ने वो कितने ने? महाराष्ट्र के विच। बाकी ऑप्शनस की अगर आप गल करते हैं तो महाराष्ट्र टॉप किया गया, 2nd नंबर पर तमिलनाडु, 3rd नंबर पर यूपी रहे। ठीक है जी फॉलोड बाय तमिलनाडु एंड यूपी। इस तो इलावा एक होर इंपोर्टेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथ एशिया एनालिसिस, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस साउथ एशिया एनालिसिस दिल्ली इज द वर्स्ट with 54,000 deaths due to air pollution in 2020 followed by Mumbai and Bengaluru। 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ एयर पोल्यूशन सब तो ज़्यादा इंडिया के कितने सी तो दिल्ली के सीगा, दूसरे नंबर पर मुंबई, तीसरे नंबर पर बेंगलुरु सिटी रही। बेंगलुरु रिलेटेड एक और इंपोर्टेंट न्यूज़ कि सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल, सर एम विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल है जो बेंगलुरु के है, यह
इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल बनेगा। इंडिया का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल किहड़ा बनेगा? सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल। क्वेश्चन स्टैटिक पूछा जाएगा कि सर M विश्वेश्वरैया रेलवे टर्मिनल कित्थे है, तो यह बेंगलोर दे विच है। यूपी स्वीडिश फर्नीचर जायंट आइकिया, स्वीडन की एक कंपनी है आइकिया ने MOU साइन किया यूपी के नाल 5500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेगा 5 सालों के। काफ़ी वड्डी अमाउंट है। और किहड़ी कंपनी करेगी? आइकिया करेगी। आइकिया कित्थे दी कंपनी है? तो स्वीडन की कंपनी है। क्वेश्चन इस तरीके नाल ही पूछा जाए। इस तो इलावा यूपी के ही फिनो पेमेंट बैंक जिसका हैडकुआटर मुंबई के विच है, फिनो पेमेंट बैंक ने यूपी के नाल मिल के वूमेन्स नूं ट्रेन करना शुरू किया 10,000 वूमेन नूं बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स बनाने के लिए। उत्तराखंड के भी न्यूज़ थी कि कुंभ मेला ऑर्गेनाइज किया जाएगा। डेट्स अनाउंस कर दी गई ने 1 तो लैके 30 अप्रैल तक कुंभ मेला हरिद्वार उत्तराखंड के परफॉर्म किया जाएगा। नेक्स्ट है विच स्टेट चीफ मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड अ 10-time हाइक in cash award for the armed forces personnel from the state who will win gallantry medals। गैलेंट्री अवार्ड तुहानूं याद होएगा कुछ दिन पहले आपां डिस्कस किए सी, कुछ दिन पहले कहांगे 26, 27, 28 जनवरी को आपां डिस्कस किए सी, 26 तरीक को अनाउंस किए गए सी। गैलेंट्री मैडल्स दे विच परमवीर चक्र हो गया, ठीक है, या डिफरेंट चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गए। ये जिहड़े अवार्ड्स ने इन्हां नूं जी प्राइज़ मनी है 10 गुना दी जाएगी अगर वो उस स्टेट तो बिलोंग करते हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने अनाउंसमेंट की है कि अगर साडी स्टेट के विचों कोई परसन गैलेंट्री मैडल जितेगा तो उसनूं जी प्राइज़ मनी है 10 गुना दी जाएगी। ठीक है, यानी कि काफ़ी, क्योंकि ये न्यूज़ वैसे ज़्यादा इंपोर्टेंट नहीं सी, पर इंपोर्टेंट इस करके बन गया क्योंकि अमाउंट बहुत वड्डी है। 10 गुना करने का मतलब है जिथे 10 लाख रुपया अमाउंट है उत्थे 1 करोड़ रुपया अमाउंट दी जाएगी। डिस्कस करते हैं कि परमवीर चक्र या अशोक चक्र के लिए 10 लाख रुपए का प्राइज़ मनी है, उत्थे 1 करोड़ दी जाएगी। महावीर चक्र और कीर्ति चक्र के लिए 8 लाख रुपए प्राइज़ मनी है, उत्थे 80 लाख रुपया दिता जाएगा। नागालैंड के चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो द्वारा 2 नवी ग्रांट्स अनाउंस की गई हैं। CM ग्रांट फॉर जर्नलिज्म, CM रिसर्च ग्रांट। CM ग्रांट फॉर जर्नलिज्म एंड CM रिसर्च ग्रांट्स कित्थे अनाउंस की गई ने? नागालैंड दे विच। MP चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान द्वारा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज किया गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है जो इसनूं नर्मदापुरम के नाम तो जानिया जाएगा। रिसेंटली इन्होंने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम किया सी, ड्रैगन फ्रूट कमलम। इसी तरीके नाल होशंगाबाद नूं नर्मदापुरम। तेलंगाना हैदराबाद सिटी है जो तेलंगाना दी, इसनूं 2020 दी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नामित किया गया। 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बाय आर्बर डे फाउंडेशन और FAO। आर्बर डे फाउंडेशन जो कि USA की एक फाउंडेशन है, 1972 के विच बनाई गई सी। USA के नेब्रास्का के विच इसका हैडकुआटर है। डैन लैम्बे इस दे हैड। FAO बारे हर एक नूं पता ही होएगा, 16 अक्तूबर 1945 के विच बनाई गई सी। इस तो इलावा FAO का हैडकुआटर रोम इटली के विच है। क्यू डोंगयू इस दे हैड ने। ठीक है, इन्होंने हैदराबाद नूं 2020 की ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड नामित किया है। ठीक है, बेसिकली डिफरेंट वर्ल्ड की सिटीज़ सीगियां इस दे विच। USA की सब तो ज़्यादा सिटीज़ सीगियां। इंडिया की इकलौती सिटी हैदराबाद इस दे विच नामित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है अज दे लिए लास्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन की गल करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 कंप्लीट हो चुका है, कल कंप्लीट हो चुका है। इस दे विच 5 डिफरेंट इवेंट सीगे। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली मैन सिंगल और वूमेन सिंगल डिस्कस करते होंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पूरी की पूरी लिस्ट है। मैन सिंगल नोवाक जोकोविक ने जीते है, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? सर्बिया तो। किसनूं हराया? डैनियल मेदवेदेव नूं हराया, किहड़ी कंट्री तो बिलोंग करते हैं? रशिया तो। वूमेन सिंगल
ਨਾਓਮੀ ਓਸਾਕਾ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ? ਜੈਨੀਫਰ ਬਰੈਡੀ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, USA ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨਜ਼ ਡਬਲ ਫਿਲਿਪ ਪੈਲਾਸੋਏਕ ਸਲੋਵੇਕੀਆ, ਈਵਨ ਡੋਜਿਕ ਕਰੋਸ਼ੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਰਾਜੀਵ ਰਾਮ ਔਰ ਜੋ ਸੈਲਿਸਬਰੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਵੂਮੈਨ ਡਬਲ ਐਲਿਸ ਮੋਰਟਨਸ ਬੈਲਜੀਅਮ, ਐਰੀਆਨਾ ਸੈਬਾਲੈਂਕਾ ਬੈਲਾਰੂਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਰਬੋਰਾ ਕ੍ਰੈਚੀਕੋਵਾ ਔਰ ਕੈਟਰੀਨਾ ਸੀਨਾਕੋਵਾ, ਦੋਨੋਂ ਕ੍ਰੈਚ ਰਿਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਕਸਡ ਡਬਲ ਮੈਨ ਡਬਲ ਵੂਮੈਨ ਡਬਲ, ਮਿਕਸਡ ਡਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨ ਇੱਕ ਵੂਮੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਰਾਮ, ਵੂਮੈਨ ਬਾਰਬਰੋਵਾ ਕੈਚੀਕੋਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ? ਮੈਥਿਊ ਐਡਬਨ ਔਰ ਸਮੰਥਾ ਸਟੋਸਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਔਰ ਵੂਮੈਨ ਸਿੰਗਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ 100% ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਕਿਹੜੇ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਡ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਦਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਟੈਨਿਸ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹਾਰਡ ਕੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਦ ਸੈਸ਼ਨ। ਗੁੱਡ ਬਾਏ।